Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Kentab Publisher. For today's lesson, you need textbook for class 3, chapter 3, lecture 3, The Wise Father. In today's lesson, by the end of this lesson, the student will be able to learn how to live peacefully. Today's lesson is comprehension lesson of the unit 3, The Wise Father. Kindly open the textbook page on the lesson, The Wise Father. Today's lesson is comprehension. So read with me, listen to the story carefully, underline the difficult words, and we'll discuss about it also. So I'm going to start from the first word. Once upon a time, there lived two brothers called Ali and Usman. They were unidentical twins. ये अन का वर्ड गलत है, ये आइडेंटिकल ट्विंस है, इसलिए अन को हटा दीजिए. Even their mother found it hard to distinguish between them. However, they were two poles apart when it came to everything other than their appearance. They neither agreed upon anything nor did they live with peace. They always quarreled over small matters. इसका मतलब समझते हैं. एक दफा का जिक्र है, दो भाई थे जिनका नाम था अली और उस्मान. वो आइडेंटिकल ट्विंस थे, यानी एक वक्त में पैदा हुए थे और उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी थी. यहाँ तक कि उनकी वालदा भी उनको पहचानना उनके लिए मुश्किल था. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना. जैसे दो अफराद फर्क होते हैं चेहरे से, आदात से, बालों से. लेकिन ये दोनों भाई अली और उस्मान बिल्कुल सेम शक्लों के थे, लेकिन वो दो अलहदा शख्सियात थे, क्योंकि उनकी हमेशा किसी बात के ऊपर एक जैसी पसंद नहीं होती थी और वो कभी भी अमन से नहीं रहते थे. हर वक्त झगड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों पे. आगे देखते हैं क्या हुआ. Ali had no friends, whereas Usman had lots of friends. Ali loved sweets, but Usman ate spicy foods only to oppose Ali. While Ali was generous, Usman was greedy. क्या मतलब? अली का कोई दोस्त नहीं था, जबकि उस्मान के बहुत सारे दोस्त थे. अली पसंद करता था मीठा, लेकिन उस्मान को मिर्चों वाले खाने ज्यादा पसंद आते थे, ताकि वो अली के मुखालफत कर सके, उसके उलट चल सके. लेकिन अली तबीयत में बहुत मुखलिस भी था और बहुत खुले दिल का मालिक था. उस्मान ग्रीडी था, लालची था. जेनरस मतलब सखी. आगे देखते हैं. As they grew up, their father wanted to teach them to resolve their conflicts. He asked them to test their abilities so that he could divide his wealth between them. Ali agreed. However, Usman did not agree and argued that they must be judged on their intelligence and strength to gain a higher share of wealth. इसके मायने, जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके वालिद ने चाहा कि वो उनको सिखा सके कि अपने मसाइल को हल कैसे करना है. कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब इख्तलाफात. अपने इख्तलाफात को हल कैसे करना है. उसने उनकी काबिलियत को आजमाने की कोशिश की, ताकि वो अपनी वेल्थ यानी दौलत को उनमें बराबर का तकसीम कर सके. अली ने हमेशा की तरह बात मान ली, लेकिन उस्मान ने ये बात नहीं मानी और बहस की कि उनको उनकी अक्लों और ताकत के मुताबिक उनका हिस्सा दिया जाए. Their father decided to organize a competition between the two.
He ordered his sons to walk as far as they could and return home before the sun set. Whoever covered more distance and returned home before the sunset would get a greater amount of wealth. उनके फादर ने यानी उनके वालिद ने फैसला किया कि एक कंपटीशन कराएंगे यानी एक मुकाबला करवाएंगे जिसमें उन दोनों को ज्यादा से ज्यादा दूर तक चलना होगा और शाम हो ढलने से पहले घर पहुंचना होगा। जो जितना ज्यादा फासला कवर कर लेगा वो उतनी जल्दी ही घर लौट आएगा। शाम होने से पहले पहले उसको उतनी ही बड़ी अमाउंट मिलेगी पैसे की। They were not allowed to carry a watch. उनको घड़ी पहनने की इजाजत नहीं थी। The competition was held on a sunny day. Ali walked slowly and steadily while Usman wanted to beat Ali, so he started to run instantly. इस मुकाबले का आगाज एक सुबह हुआ जिसमें अली ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया, लेकिन उस्मान ने अली को हराने की खातिर दौड़ना शुरू कर दिया। The distance they covered by midday was enough to cover on their return journey and reach home before the sunset. At midday, Ali decided to return so that he could reach home in time. However, Usman, with his wish to earn more wealth, did not turn up even by noon. He walked twice the distance that Ali had covered and then decided to come back before the sun set. He walked faster to get home in time as the sun turned orange in the evening. Unfortunately, he could not even make it halfway home and soon it was dark. इसका मायने देखते हैं। वो फासला जो उन्होंने कवर करना था आधे दिन तक, वो इतना काफी था कि वो अपने टाइम पे घर के रास्ते को वापस लौट सकते शाम तक। फिर अली ने दोपहर में डिसाइड किया कि वो वापस चलना शुरू कर देगा ताकि वो वक्त के मुताबिक घर पहुंच सके, लेकिन उस्मान ने ये ख्वाहिश की क्योंकि उसको ज्यादा पैसे की लालच थी, तो उसने और भी फासला तय कर लिया दोपहर तक। वो डबल रास्ता चल पड़ा और जब अली ने जितना रास्ता कवर किया था उससे आगे निकल गया, और जब उसने वापस आने का फैसला किया शाम से पहले, तो तेज तेज चलने के बावजूद भी वो फासला मुकम्मल तौर पे कवर ना कर सका और सूरज नारंगी रंग का हो गया। He could not even make it halfway home. वो आधा रास्ता भी मुकम्मल तौर पे कवर ना कर सका और बहुत जल्दी अंधेरा हो गया। He not only lost the race but also the greater part of the wealth as well and was defeated because of his negative approach. रेस को हारने के साथ साथ वो अपनी दौलत का वो बड़ा हिस्सा भी खो चुका था क्योंकि उसने अपने भाई को अपनी मनफी सोच की वजह से हराने की कोशिश की थी। नेगेटिव अप्रोच यानी मनफी सोच। At last, he felt sorry and was ashamed of his misbehavior. He finally decided to live peacefully with his brother. He asked him to forgive him for his shortcomings, to which Ali agreed. The father was happy that he resolved the conflict between his sons. आखिरकार उस्मान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने भाई से माफी मांगने का फैसला किया और अमन व अमान के साथ पीसफुली अमन के साथ जिंदगी गुजारने की ठान ली, और उसने माफी भी मांग ली अपनी गलतियों की और कोताहियों की, और जिसके लिए अली ने उसको माफ कर दिया। उनके वालिद बहुत खुश थे कि उनका ये मसला हल हो गया है और उनके दोनों बेटे खुशी से और अमन की जिंदगी गुजार सकते हैं। अब डिक्शनरी के अल्फाज देखते हैं जो स्टोरी में मौजूद थे। अनआइडेंटिकल, बीइंग नॉट सेम, नॉट अलाइक। डिस्टिंग्विश, सेट अपार्ट, डिफरेंशिएट यानी फर्क करना। जेनरस, विलिंग टू गिव एंड शेयर, सखी। आर्ग्यू, ट्राई टू परसुएड, इंसिस्ट, जिद करना या बहस करना। डिफीट,
ओवरकम बीट हराना, मात देना। ना आपने find these words in the lesson and circle them. इन अल्फाज को सबक सेट में ढूंढ के सर्कल कीजिएगा। ये आपका होम टास्क है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग के बाद हमने इन सवालात के जवाब देने हैं। ए, व्हाट इज मेंट बाय पीस? अमन का क्या मतलब होता है? बी, हाउ वॉज द नेचर ऑफ द टू ब्रदर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? दोनों भाइयों की आदतों में क्या फर्क था? सी, व्हाट डिड देयर फादर वांट? उनके वालिद क्या चाहते थे? डी, व्हाई डिड उस्मान लूज द रेस? उस्मान रेस क्यों हार गया था? ई, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी के आखिर में आपको क्या सबक हासिल हुआ? ये टास्क करने के लिए आपने इस लेसन को दोबारा से रीड करना है, अल्फाज के मायने समझने हैं और अपनी कॉपी में इनके जवाबात लिखने हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात आपको इसी कहानी में मिल जाएंगे। Question 2. Mark the right answers from the given choices. The first one has been done for you. Ali and Usman were dash brothers. 3. Together, twin, you join. They were twin brothers. Number 2. While Ali was generous, उस्मान के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है स्टोरी में? आप वापस जाके रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। ग्रीडी, वाइज, फूल, इनोसेंट। क्या वो मासूम था? क्या बेवकूफ था? क्या बहुत ज़हीन था या लालची था? वो लालची था। आपने इस सर्कल में कलर कर देना है या इस ऑप्शन को सर्कल कर देना है, वो आपकी मर्जी। नंबर 3. Who decided to organize a competition between the two brothers? दोनों भाइयों में किसने मुकाबला करने का फैसला किया? क्या उनकी वालदा ने, कि चचा ने, दोस्त ने या वालिद ने? मदर, अंकल, फ्रेंड, फादर। किसने उनके दरमियान में मुकाबला करवाने का सोचा? उनके वालिद ने, उनके फादर ने। यस। नंबर 4. Who walked slowly and won the race? कौन आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और वो रेस जीत गया? फाहद, अली, उस्मान या हसन? इस स्टोरी में ना तो कोई फाहद है ना तो हसन, तो जो ऑप्शंस रह गई हैं उसमें से कौन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रेस जीत गया था? और जवाब है अली। नंबर 5. Their father decided to organize a dash between them. उनके वालिद ने उनके दरमियान में क्या करवाने का फैसला किया? मुकाबला, रेस, एक इम्तिहान या कोई मैच? कॉम्पिटिशन। Question number 3. Learn these words for dictation and make meaningful sentences in your notebook. इन अल्फाज के स्पेलिंग्स को आपने याद करना है और उसके बाद इनको कॉपी में जुमलों में इस्तेमाल करना है। इन अल्फाज के मायने मैं आपको बताती हूँ। अग्री का मतलब मान जाना, फैमिली खानदान, ब्रदर भाई, क्वारल लड़ाई, डिसाइड फैसला करना। इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करके अपनी कॉपी के ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं। अब वर्कबुक का पेज खोलिए जहां पे आपका टास्क है राइटिंग का। नंबर 2. Find the answers of the following questions with the help of your classmate. Number 1. Tell one good thing about Ali. अली के बारे में एक अच्छी बात आपने स्टोरी में से पढ़ के ढूंढ के यहाँ पे लिखनी है। अली कैसा बच्चा था?
अली को क्या पसंद था, कोई सी भी एक बात। नंबर 2, टेल वन बैड थिंग अबाउट उस्मान। स्टोरी में उस्मान के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, कोई सी एक बात जो कि उसकी बुरी आदत थी वो यहाँ पे आपने लिखनी है। नंबर 3, व्हाट डिड द फादर डिसाइड। उनके वालिद ने क्या फैसला किया, वो क्या चाहते थे, तो उन्होंने जो फैसला किया वो यहाँ पे आपने स्टोरी में से ढूंढ के लिखना है। उनके वालिद ने डिसाइड किया कि उनके दरमियान में दौलत को बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए। ये लाइन आपने स्टोरी में से ढूंढ के यहाँ पे लिखनी है। When was the competition held? ये मुकाबला किस वक्त हुआ था, हमें इस वक्त का पता है, स्टोरी में मौजूद है। दोबारा से स्टोरी को रीड करें और यहाँ पे वो आंसर लिखिए। नंबर 5, was उस्मान ashamed of his behavior? क्या स्टोरी के आखिर में उस्मान को अपने तरीक़ेकार पे, अपनी हरकत पे, अपने रवैये पे शर्मिंदगी थी? यस या नो, जो भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्टोरी के एंड में ये बात मौजूद है, आपने वो पढ़ने के बाद इस सेंटेंस यहाँ पे वो सेंटेंस लिखना है। होम टास्क के लिए, समर पैक के लिए आपके पास पेज नंबर 23 एंड 24 पे कुछ काम है। You have to read these lines and then answer these questions. बिल्कुल वैसे ही स्टोरी का ये पार्ट आपने पढ़ना है और इन सवालात के जवाब देने हैं। Who were two brothers? उनके नाम। Who had difficulty to identify? उनको पहचानने में किसको मुश्किल होती थी? What kind of boys were those two brothers? वो दोनों भाई किस तरह के थे? What is the theme of this paragraph? इस पैराग्राफ में वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं? और नंबर 5, did they live in peace? क्या वो दोनों भाई अमन के साथ रहते थे या लड़ाई झगड़े के साथ? इनके जवाबात आपने इन लाइनों में लिखने हैं स्टोरी में से ढूंढ के। तो आपको स्टोरी 2-3 दफ़ा पढ़नी पड़ेगी ताकि आपके पास हर सवाल का जवाब आ जाए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क बिफोर द नेक्स्ट लेसन। इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह आपने रीड करके आना है और समझ के आना है। Until then, take care of yourself and your family. See you soon. Allah Hafiz.